where there is synchronization between the body, mind, and one's spiritual self, is what we call as yoga. Yoga is a gem that has been in practice since ancient years. Over the period of time, the awareness and importance of yoga has increased, and with the ongoing situation, it has become even more crucial. Today, Lakshmi Chand Golwala College of Commerce and Economics, on behalf of presents a special program, Yoga for Students. We have with us our yoga trainer and session conductor, Ms. Bhairavi Dandekar. She's a well known trainer, runs yoga sessions for students, ladies, and corporates. She is a national level player in netball sport. She has represented Maharashtra state many a times in various competitions. Currently, she is associated with Yoga Research Center. A very warm welcome to you, ma'am. With this, I would like to welcome our in charge principal, Dr. Vijay Mahida sir, my fellow colleagues, and dear student. Now, I would request our in charge principal to speak a few words. Hello, one and all. It is a glorious moment to extend a warm wishes on behalf of Ramji Asher Vidyalayas, Lakshmi Chand Golwala College of Commerce and Economics. I want to convey my heartfelt gratitude to Dr. Sunil Karve sir for helping in organizing such a wonderful event. Just few days back, we have celebrated International Yoga Day. The importance of yoga in the life of the student plays a vital role. On behalf of Ramji Asher Vidyalayas, LG College of Commerce and Economics, I am welcoming today's resource person, the yoga trainer, Ms. Bhairavi. विजय महिदा Thank सर you very दिखाते much for accepting our invitation. And Mahida sir, please unmute yourself. Sorry for the interruption, everyone. I think there's some connectivity issue. yeah, okay. Yes, sir, you're audible, but your video is off. Okay. Yes. Okay. Hello. Yes, sir. Yeah, I think so. Please carry on, madam. Continue. I have already spoken. Okay, thank you so much, sir. Moving forward, I would now request ma'am to briefly describe what yoga is and its importance with certain demonstration. Bhairavi ma'am, you can unmute yourself. Namaste. तो जैसे कि अब हमारा इंटरनेशनल योगा डे है जो उसे सेलिब्रेट किया है, तो योगा अभी बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ है, यानी बहुत उसका इम्पोर्टेंस हमें पता है आसन के स्वरूप में। तो पहले हम जान लेते हैं कि योगा के आसन क्या है, यानी कि उससे इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि जब हम कोई भी आसन करते हैं उसे इंग्लिश में पोस्चर आप जनरल टर्म्स में उसे समझ सकते हैं। लेकिन जैसे अभी मैम ने भी बताया, ये जो नॉलेज है वो अभी का नहीं है, और बहुत साल पहले बहुत जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ये पूरा जो है एक बुक फॉर्म में लिखा गया है। उसमें जो है पतंजलि ऋषि है और बाबा रामदेव पतंजलि, वो ब्रांड अभी बहुत ज्यादा फेमस है, तो पतंजलि कहा गया है तो उनका नाम हमें सबसे पहले याद आ जाता है। तो वो पतंजलि नहीं, पतंजलि ऋषि करके एक ऋषि थे जिन्होंने ये जो पूरा योगा का नॉलेज है तो 196 सूत्रास में फॉर्म किया है। उसका छोटा सा एकदम टेक्स्ट बुक आता है, एक लाइन के ही उनके जो है डिस्क्रिप्शन है योगा के बारे में।
तो उन्होंने योगा आसनों के बारे में ऐसी व्याख्या वहां पे की है। उन्होंने ऐसे ऐसे ब्रीफली नहीं करते हुए एक शॉर्ट लाइन में उन्होंने समझा है कि उसका अर्थ है योगा आसन यानी कि स्थिर सुखम आसनम, यानी आप जो भी कोई भी योगा का आसन करेंगे उसमें आपको स्टेबल रहना है, स्थिर रहना है, और उसी पोजीशन में आपको एक हैप्पीनेस और एक आनंद जिसे हम कहते हैं, सुखकारकता जिसकी भावना कहा जाता है, वो भावना आपको उस जो है पॉस्चर में आनी चाहिए। जब तक आप वो स्टेबिलिटी और वो हैप्पीनेस फील नहीं करते किसी भी आसन में, तो उसे आसन कहा जाता नहीं है। तब कोई भी आसन में आप बैठे हुए हैं, हाथ में क्रॉस पोजिशन में है, हाथों की ध्यान मुद्रा है, और उस इसी $85 lakhs ऑफ आसन है योगा के, कहा जाता है जितने भी क्रिएचर्स है उनके हर एक के नाम का एक आसन है। तो कहा जाए तो हर एक लोग के लिए, हर एक जो है इंसान है कह सकते हैं हम, उसके लिए हर एक के लिए एक ना एक आसन है ही, इसका कोई आसन नहीं है कि वो नहीं कर सकते। तो योगा की जो है शुरुआत जो है, जैसे कि आप जिम में वगैरह भी गए होंगे, आप अदर कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो उसमें आपने देखा है कि हम वार्म अप से जो है योगा की शुरुआत करते हैं। उसी तरह जो है हम योगा की भी शुरुआत एक अच्छे खासे वार्म अप से करते हैं। आप सभी को पता रहेगा और आपने सुना भी रहेगा, सूर्य नमस्कार जिसे कहा जाता है, बहुत फेमस भी है। हर एक इंस्टीट्यूट के अलग अलग है, स्टेप वाइज उनके अलग अलग हो जाते हैं। तो मैं पहले आपको थोड़ा सूर्य नमस्कार का डेमो दिखाना चाहूंगी, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगा का फॉर्म है जिसमें आपके हेड टू टो यानी कि सिर से लेके पांव तक पूरे आपके जो है मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होते हैं। पूरे शरीर में एक अच्छा आपको जो है स्ट्रेचिंग इफेक्ट और उसका फिटनेस आपको देखने मिलता है। आपने सुना रहेगा कि लोग बहुत सारे 108, 1000 वगैरह सूर्य नमस्कार भी करते हैं एक ही दिन में। तो अगर आप डेली उससे परफॉर्म करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाने में, आपके डाइजेशन को सुधारने में और ओवरऑल आपका फिटनेस इंप्रूव करने में इससे मदद मिलती है। तो मैं पहले थोड़ा आपको सूर्य नमस्कार के बारे में दिखाती हूँ कि उसे किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, उसे किस तरह से परफॉर्म करना है। तो जो सूर्य नमस्कार की पोजीशन है उसमें आपको आपके दोनों पैरों के जो है एड़ियां और उसके अंगूठे, दोनों पैरों के घुटनों को मिलाकर रखना है। दोनों हाथों की आपको नमस्कार अवस्था करनी है। आपके दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं वो आपकी छाती के पास रहेंगे, छाती के यहाँ पे जो गड्ढा रहता है वहां पे आपको रखने हैं। एल्बो सीधे रहेंगे, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे। तो ये होती है सूर्य नमस्कार की प्री पोजिशन। अभी प्री पोजिशन से आपको सूर्य नमस्कार की पहली अवस्था लेनी है जिसे कहा जाता है बैकवर्ड बेंड, जिसमें आपको धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाना है, कमर से थोड़ा पीछे की ओर बेंड करना है। ये हो गई सूर्य नमस्कार की पहली अवस्था। अभी यही से ही धीरे धीरे आपको कमर से आगे झुकना है, फॉरवर्ड में। दोनों हाथ जो है आपके पैरों की पंजों की साइड में रखनी है। अगर आपके हाथ नहीं जाते यहाँ तक, तो जहां तक आपके हाथ इजीली जा सकते हैं आप लेके जाइए, लेकिन ध्यान रखना है घुटनों में जो है आपके पैर सीधे रहेंगे। अभी यही से ही 3 की अवस्था में आपको आपके लेफ्ट पैर को पीछे की ओर लेके जाना है। लेफ्ट पैर का घुटना आपका जमीन पर रहेगा, आपके राइट एंकल के ऊपर आपके राइट नी को आपको रखना है, बहुत ज्यादा आगे नहीं, बहुत ज्यादा पीछे नहीं। आपको बैकबोन को सीधा रखना है, दोनों हाथ पैर के पंजों के पास, नजर सामने की ओर, गर्दन सीधी। यही से ही नेक्स्ट पोजीशन में हमें जाना है जो है 4 की पोजीशन, जिसमें आपको आपके राइट पैर को पीछे लेके जाना है, आना है प्लैंक पोजीशन में। गर्दन सीधी रहेगी, स्लैंटिंग पोज भी इसे कहा जाता है। अभी यही से ही 5 की अवस्था में आपको घुटने, आपकी चेस्ट और आपके चिन को जमीन पर रखना है, इसे कहा जाता है अष्टांग अवस्था, जिसमें आपका पीठ का हिस्सा जो है मैट के ऊपर रहेगा। यही से ही धीरे धीरे आपको आपकी बॉडी वेट को आगे की ओर शिफ्ट करते हुए आना है भुजंग आसन में। आपके लोअर बैक से लेके आपके पूरे अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, गर्दन पीछे की ओर रहेगी। यही से ही आपको आपके हाथ के ऊपर प्रेशर डालते हुए आपकी हिप्स को ऊपर उठाना है, हील्स को जमीन पर रखना है, नजर अपनी नाभि की ओर रखनी है, घुटनों में पैर सीधे, पर्वत आसन।
अभी यही से ही अपने जो पैर हमने पहले पीछे लेके गए हैं उसी पैर को आगे लेके आना है, यानी लेफ्ट पैर को अभी हमने आगे लाया है। तो इसमें बहुत बार क्या होता है, हमारा पैर बहुत ज्यादा आगे आता नहीं है, तो अगर आपका आता नहीं है तो हाथ के सपोर्ट से आप उसे आगे लेके आइए। फिर से एक बार अपने एंकल के ऊपर आपकी नी को आपको प्लेस करना है, दोनों हाथ पैरों के पंजों के साइड में रहेंगे। अभी यहीं से फिर से एक बार अपनी राइट पैर को ऊपर उठाना है, फिर से आना है, दोनों पैर हाथों के बीच में, फॉरवर्ड बेंड, गर्दन को नीचे झुकाएं। अभी यहीं से ही सांस लेते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाएंगे 10। इस तरह से जो है आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। अभी ये जो हमने सूर्य नमस्कार देखा, इसमें आपने देखा कि हम हर एक पोस्चर में गए, उसमें कुछ ब्रीदिंग भी आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपका जो है माइन्यूट लेवल में आपका प्राणायाम का भी प्रैक्टिस होता है। तो बहुत ही इफेक्टिव ऐसा ये प्रैक्टिस है अगर आप डेली से परफॉर्म करते हैं। और एक उसका एक करने का भी तरीका है, अगर आपको किसी को वेट लॉस वगैरह करना है तो उसके लिए भी जो है आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। यस, आगे किसी को कुछ क्वेरी वगैरह है तो मैं आगे को भी आपको बताती हूँ क्या करना है आपको। Yes, ma'am. Okay. Thank you so much, ma'am. That was an enlightening demonstration. आपने काफी अच्छे से हमें समझाया। पर्सनली मुझे हमेशा डाउट रहता है सूर्य नमस्कार में। Ma'am, also, I would like to put a message in the chat box that right now we are running at a 200 plus participants and a link of feedback form will be sent. Please, students, do fill it. Okay, now I would hand over the program to Gaikwad sir. Gaikwad sir, you can take it forward. Yes, ma'am. Am I audible, ma'am? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So thank you, madam, for your yoga demonstration of Surya Namaskar. It's really very helpful for all the students and teachers in pandemic time. Madam, we all of us know that due to physical restriction, students are nowadays unable to focus and concentrate in their studies. So related to this, on behalf of the students, my question is how to develop the concentration and what are the asanas to develop the concentrations for the students. So can you show any demonstration regarding to the improving our concentration? Yes, yes. तो जैसे कि अभी सर ने भी कहा कि कंसंट्रेशन हमारा हो नहीं पाता है, स्टडीज का भी है। तो स्टडीज अगर आपको अच्छी करनी है, आपको आपका परफॉर्मेंस अच्छा देना है, तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा होना जरूरी है। लेकिन कंसंट्रेशन न होने के भी बहुत सारे रीजन है। ये अभी टीनेज में हमें आगे के करियर के बारे में सोचना है, अभी पैंडेमिक की वजह से पूरा जो है ओवरऑल सिचुएशन उसके बारे में सोचते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, कंसंट्रेशन अच्छे से हो नहीं पाता है। तो आप कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत ही इजी ऐसा आसन है जिसे कहा जाता है पद्मासन। आप सभी ने इसका नाम भी सुना रहेगा, बहुत ही इजी है करने के लिए। अगर आप एक बार सीख गए तो आप आसानी से उस आसन में अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए आपका कंसंट्रेशन जो है बढ़ा सकते हैं। तो उसे कैसे करना है मैं आपको दिखा दी हूँ। पहले आपको नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में आना है, दोनों पैरों को सामने रखना है, दोनों हाथ आपके कमर की साइड में रहेंगे। यही से ही आपको आपके दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है, 1 से 1.5 फीट का। अभी यही से कोई भी एक पैर को फोल्ड करते हुए उसके पैर के पंजे को आपके अपोजिट पैर के थाइस के ऊपर रखना है। फिर उसी तरह से अपने दूसरे पैर को फोल्ड करते हुए उस पैर का जो है पंजा आपके जो पैर पहले आपने फोल्ड किया है उस पैर की थाई के ऊपर रखना है। यानी आपने देखा रहेगा कि ये जो है क्रॉस लेग पोजीशन हो जाता है। तो इस तरह से आपको पद्मासन की अवस्था लेनी है। आपके दोनों पैर के हील्स जो है एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे इस तरह से। और उसी के साथ अभी आपको आपकी दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा करनी है, जिसमें आपका अंगूठा और आपकी अंगूठे की बाजू की फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर को सर्कुलर फॉर्म में होल्ड करना है। उनके जो टिप्स है उन्हें मिला लेना है, दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखना है। आपके हथेलियां जो है वो दीवार छत की ओर रहेंगी। आपको इस पोस्चर में आपको बैक को सीधा रखना है, झुकना नहीं है कहीं पे भी।
आपकी बैकबोन को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, हाथों की ध्यान मुद्रा। इस तरह से अगर आप इस आसन के पोजीशन में धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ अगर बैठते हैं और इस आसन के अभ्यास के समय अगर आप आंखें बंद करते हैं तो आपका जो है कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंप्रूव करने में आपको मदद मिलेगी। आप अब ये सेशन में भी देख सकते हैं कि हमारा जो अंगूठा है, इंडेक्स फिंगर के हम जो है यहाँ पे मिलाए लेते हैं और सर्कल फॉर्म करते हैं, वहां पे एक सेंसेशन डेवलप होता है। अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा है तो आपको दोनों हाथों के फिंगर टिप्स में सेंसेशन फील होगा और उसी तरह से आप वो सेंसेशन को फील करते हुए अपने कंसंट्रेशन को और इम्प्रूव करने में इस आसन से उसकी मदद ले सकते हैं। तो ये है पद्मासन, जिसमें आपको स्ट्रेट बैठना है, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा रहेगी, आंखें बंद करते हुए इस आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप आगे जाके 1 घंटे तक भी आसानी से इस आसन के पोजीशन में बैठते हुए अपना जो भी है ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जो भी आपको करना है आप इस नॉर्मल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठते हुए आसानी से कर सकेंगे। So, okay, ma'am. Thank you. Now I hand over the next session to Ankita, madam. Please, Ankita, Thank you, ma'am. madam. I would like to ask one question. Some people are facing breathing problem due to the pandemic. Can you show some yogasana that will helps to improve the immunity? यस श्योर। तो ब्रीदिंग का भी हमने जो है पूरे पैंडेमिक में देखा है कि लंग्स बहुत इफेक्ट होते हैं कोविड के सिचुएशन में, और ओवरऑल जो भी है ब्रीदिंग के जो इश्यूज है वो बहुत बार हमारे जो है नॉस्ट्रल ट्रैक्ट से ही रिलेटेड रहते हैं, लंग्स से रिलेटेड रहते हैं। अगर आपके लंग्स अगर किसी भी कारण से अफेक्ट है तो आपका ब्रीदिंग रेट अच्छा नहीं रहता है। तो उसमें आप सिंपल जो है ब्रीदिंग प्रैक्टिस को कर सकते हैं, जो करने के लिए भी आसान है और आसानी से सभी उसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें से है जो है फर्स्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिस मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिसे कहा जाता है फास्ट ब्रीदिंग, या उसे कहा मराठी आप हिंदी में कह सकते हैं जलद श्वसन, जिसमें आपको जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आप पद्मासन ले सकते हैं। तो पद्मासन में बैठते हुए या अगर पद्मासन किसी को डिफिकल्ट लगता है करने में तो आप नॉर्मल क्रॉस लेग पोजिशन में या हम पालथी मार के जिसे कहते हैं उस तरह से बैठे, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा करें, बैकबोन को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए। अभी आपको इस जो है फास्ट ब्रीदिंग का अभ्यास करते हुए धीरे धीरे आपको आपके जो ब्रीदिंग रेट है उसे बढ़ाना है और धीरे धीरे से कम करना है। तो इसे किस तरह से करना है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। बैकबोन सीधा रहेगा, पहले कुछ सेकंड नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करने के बाद धीरे धीरे सांसों की गति को बढ़ाना शुरू करेंगे। तो अभी आपने जो देखा रहेगा, आपने सुना रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा फिजिकली ऐसे दिखता नहीं है कि हमने क्या किया है, पर आपका जो है ब्रीदिंग रेट बढ़ा हुआ आपको बाद में महसूस होगा, थोड़ा हार्ट रेट जो है बढ़ा हुआ आपको महसूस होगा। तो ये जो अभी हमने ब्रीदिंग प्रैक्टिस देखा जिसका नाम है फास्ट ब्रीदिंग, उससे आपके जो है नॉस्ट्रल ट्रैक्ट जो है रहता है यानी नासिका मार्ग जो रहता है उसमें कहीं पे भी टॉक्सिन या कोई इंफेक्शन है तो उसे बाहर फेंकने में मदद मिलती है। आप उसके 1 से 2 राउंड कर सकते हैं, 1-1 मिनट के 2 राउंड अगर आप परफॉर्म करते हैं तो नॉस्ट्रल ट्रैक्ट की क्लींजिंग होने में मदद मिलती है। उसी के साथ और एक इफेक्टिव और इजी करने वाली ऐसी ब्रीदिंग प्रैक्टिस है जिसे कहा जाता है डीप ब्रीदिंग, जिसमें आपको धीरे धीरे गहरी गहरी सांस लेनी है। जिससे क्या होता है हमारे जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है सांस अंदर लेने की, पर हम क्या करते हैं अभी ये पूरे जो सिचुएशन है और ओवरऑल हमारे काम के चक्कर में हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है फुल भी नहीं करते। लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग या दीर्घ श्वसन का अभ्यास करते हैं तो हम धीरे धीरे से सांस लेते हैं 4 अंकों में और धीरे धीरे से 8 अंकों में सांस को छोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है हमारे लंग्स अच्छे से फिल हो जाते हैं और जो है हम अच्छे से एक्सेल करते हुए लंग की कैपेसिटी बढ़ाने में इससे मदद मिलती है।
तो इसे भी करने के लिए आपको कोई भी एक क्रॉस लेग पोजिशन लेना है या कोई भी एक मेडिटेटिव पोज लेना है। दोनों हाथों पे फिर से एक बार ध्यान मुद्रा करनी है, पीठ और गर्दन को सीधा रखना है। इस ब्रीदिंग प्रैक्टिस के समय भी आपको अच्छे से धीरे धीरे स्मूथली 4 अंकों में सांस लेनी है, 8 अंकों में सांस को छोड़ना है। मैं अभी यहाँ पे आपको नंबर्स दिखा रही हूँ इनहेल करते हुए, क्योंकि आपको फिजिकली जैसे कि मैंने कहा ये जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है आपको सामने की ओर से दिखेंगे नहीं, क्योंकि हम धीरे धीरे इनहेल कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे करना है। धीरे धीरे सांस, पहले सांस छोड़नी है और धीरे धीरे सांस लेना शुरू करेंगे। और ये फर्स्ट आवर्तन हमारा कंप्लीट हुआ और एक आवर्तन करके करेंगे। इस तरह अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है और रिंग फिंगर से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना है। पहले दोनों नॉस्ट्रल से सांस छोड़नी है, राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, धीरे धीरे लेफ्ट से सांस लेनी है, धीरे धीरे राइट से सांस छोड़ेंगे। फिर से एक बार राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे और एक राउंड करेंगे। लेफ्ट से सांस लेनी है, राइट से सांस को छोड़ेंगे और फिर से एक बार राइट से सांस लेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। इस तरह से आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। याद रखिए जब भी आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट से सांस को छोड़ना है, राइट से सांस लेते हुए आपको लेफ्ट से सांस छोड़ के ही अनुलोम विलोम का अभ्यास कंप्लीट करना है। उसे कहा जाता है एक आवर्तन आपका कंप्लीट हुआ। इस जो है ब्रीदिंग प्रैक्टिस से आपको जो है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में आपको मदद मिलेगी। उसी के साथ जो स्ट्रेस है उससे भी कम करने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव ऐसी ब्रीदिंग सो हड़बड़ा में कंफ्यूज रहते हैं, तो ऐसे समय में वो पर्सन अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकता है? मैम, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डेमोन्स्ट्रेट सच आसन जो एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकता है। ओके, यस। तो अगर आपको स्ट्रेस कम करना है तो योगा एक बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही आसान बहुत आसन है। उसमें जो आसानी से आप परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपको स्ट्रेस को कम करने में, एंजाइटी को कम करने में, जैसे कि मैम ने भी कहा कि फियर को कम करने में आपको मदद मिलेगी। उसमें से ही एक आसन है जिसे कहा जाता है चाइल्ड पोज। छोटे बच्चों को आपने देखा रहेगा कि वो सोते समय बहुत बार, जब बचपन में वो माथा जमीन पे रख के बहुत बार सोते हैं, तो वो जो आसन है बच्चों को देखने के लिए बहुत इजी और आसान लगता है। तो हमारा जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हमारी बॉडी में कुछ एक्टिविटी नहीं होने के कारण स्टीफनेस आ जाता है, तो वो करने के लिए हमें वो आसन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर देखने के लिए आसान है। उसके लिए पहले आपको वज्रासन की अवस्था लेनी है, यानी आपके जो पैर के अंगूठे हैं उन्हें मिला लेना है, आपके हील जो है सेपरेट करने हैं और यहाँ पे आपको इस तरह से बैठ जाना है। इसे कहा जाता है वज्रासन।
ये भी बहुत ही इफेक्टिव और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए इफेक्टिव ऐसा आसन है। आपको खाना खाने के बाद अगर आपको डाइजेशन की तकलीफ है, डाइजेस्ट नहीं होता है, तो योगा में कहा जाता है ये एकमेव ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद आप इजीली करेंगे तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रखने में आपको मदद मिलेगी। अभी इसी आसन से हमें करना है चाइल्ड पोज, जिसे शशांक आसन के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको आपके दोनों हाथ जो है घुटनों के सामने रखने हैं। धीरे धीरे अपने घुटनों को थोड़ा सेपरेट करना है, हाथों को धीरे धीरे थोड़ा स्लाइड करते हुए अपने चेस्ट को अपने थाइस के ऊपर लेके जाना है। अपने फोरहेड को धीरे से जमीन के ऊपर रखना है, मैट के ऊपर रखना है। इस आसन का नाम है शशांक आसन, बहुत ही इफेक्टिव ऐसा आसन है। इस आसन से आपके जो है स्ट्रेस, एंजाइटी को कम करने में, पूरी बॉडी को आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने में इस आसन से मदद मिलती है। बहुत ही इजी और बहुत ही इफेक्टिव ऐसा आसन है शशांक आसन। इस आसन से क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन हमारी ब्रेन की तरफ, हमारे चेहरे की तरफ आने में मदद मिलती है। इसके कारण स्ट्रेस को कम करने में, एंजाइटी को, फियर्स को दूर करने में इस आसन से जो है आपको मदद मिलेगी। इस आसन को छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस लेते हुए आपको सीधे होना है। दोनों हाथों को धीरे से फिर से एक बार अपने कमर के पास लेके आइए, दोनों पैरों के घुटनों को फिर से मिला लेना है। तो इस तरह से अगर आप चाइल्ड पोज यानी शशांक आसन का अभ्यास करते हैं, आप इस आसन को 30 सेकेंड्स धीरे धीरे, जैसे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होती है, आप 1 मिनट तक भी आसानी से इस आसन के पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्ट्रेस और आपके फिजिकल फिटनेस की, आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने में इस आसन से आपको मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम, आपने जो ये आसन बताया है वो हम ज़रूर ट्राई करेंगे ताकि हमारी जो लाइक मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो जाए। बट उसी के रिलेटेड एक और सवाल है, जैसे हम इंटरव्यू के टाइम पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ता है, सो ऐसे टाइम पे हम थोड़ा थक भी जाते हैं, हमारा थोड़ा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है, तो ऐसे समय में हम ऐसे आसन तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप वो टाइम पे वहाँ पर बैठकर ही हम ऐसे कौन से आसन कर सकते हैं ताकि हम वापस से रिफ्रेश हो सके? ओके, तो जैसे कि इंटरव्यू में हम जाते हैं, बहुत जगह पे मेगा इंटरव्यू रहते हैं या वॉकिंग इंटरव्यू रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पहले से आए हुए हैं या कैंडिडेट्स आए हुए हैं, बहुत ज्यादा लंबे लंबे टाइम तक हमें वहाँ पे रुकना है। तो आप वहाँ पे इजी और सिंपल ऐसे, जैसे मैंने आपको ब्रीदिंग भी बताया, आप डीप ब्रीदिंग का अभ्यास वहाँ पे कर सकते हो, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। आपको अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठिए, दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखिए, बैकबोन को सीधा रखिए। डीप ब्रीदिंग से आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा, आपको फोकस करने में, आपके इंटरव्यू में मदद मिलेगी। उसी के साथ ही आप वहां पे ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपके पूरे बॉडी के मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होंगे। इंटरव्यू के समय आपको अपने देखा रहेगा कि आपने सुना रहेगा कि आपके पोस्चर्स पे और आपके पूरे आपके अटायर के साथ आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को इंटरव्यूअर के सामने, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आप ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं वहां पे, बहुत ही इफेक्टिव ऐसा आसन है। उसी के साथ वृक्षासन भी है। दोनों आसन आपको खड़े रहते हुए करने हैं, तो आपको कहीं पे जाके बैठने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल वॉशरूम में जाके या कहीं रेस्ट रूम है वहां पे भी, तो वहां पे जाके इजीली ये दोनों आसन कर सकते हैं। तो इन्हें कैसे करना है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस आसन में आपको आपके दोनों पैरों के अंगूठे और एड़ियों को मिलाकर रखना है, दोनों पैरों के घुटनों को मिलाकर रखें। यहीं से दोनों हाथों के जो फिंगर्स को इंटरलॉक करना है सामने की ओर से, हथेलियों को टर्न करते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाना है। धीरे धीरे अपने हील्स को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। नजर किसी भी एक केंद्र बिंदु पे, किसी भी एक पॉइंट पे बनाए रखेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। इस आसन का अभ्यास करने से कंसंट्रेशन को भी इंप्रूव करने में मदद मिलेगी, आपके पोस्चर्स को भी सुधारने के लिए बहुत ही इफेक्टिव ऐसा आसन है ताड़ासन। अभी धीरे धीरे आसन छोड़ते, पहले एड़ियों को नीचे रखना है, हथेलियों को टर्न करते हुए हाथों को सामने की ओर लेके आएंगे, दोनों हाथों को अलग करते हुए दोनों हाथ फिर से एक बार आपके कमर के पास। यही से अगला आसन हम कर सकते हैं वृक्षासन।
वो भी करने के लिए इजी है। आपको दोनों हाथों को धीरे धीरे साइड से सिर के ऊपर लेके जाना है, हाथों की नमस्कार अवस्था करनी है। अभी फिर से एक बार अपने धीरे धीरे एडियो को ऊपर उठाना है, हाथों को अच्छे से सिर के ऊपर स्ट्रेच करेंगे। कहीं पे भी एक बिंदु पे या किसी भी एक पिक्चर पे आप कंसंट्रेट करेंगे थोड़े 1-2 सेकंड के लिए अच्छे से। इस आसन के पोस्चर में आपको स्थिर रहना है। इस आसन का अभ्यास करने से कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। इस आसन को छोड़ते हुए धीरे से फिर से एक बार एडियो को नीचे रखना है, धीरे धीरे हाथों को फिर से एक बार कमर के पास सीधा कर लें। तो ये दोनों आसन आप इजीली कर सकेंगे। कहीं पे भी आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, वहां पे रेस्ट रूम है, तो वहां पे जाते हुए आप इस आसन को परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पोस्चर्स को सुधारने में, इंटरव्यू में आपके कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने में ये दोनों आसनों से आपको मदद मिलेगी। Thank you so much, ma'am. We have discussed enough. Conclusion ये आता है मैम कि आजकल की लाइफ काफी बिजी एंड फास्ट है, एंड इस बिजी फास्ट लाइफ का हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज। तो इररिस्पेक्टिव कि आज हम किसी एज ग्रुप में आते हैं, वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ कॉमन हेल्थ इश्यूज like indigestion, and today all of us, even students, are working, we are sitting for a long duration of time, तो बैक पेन और नेक पेन काफी कॉमन हो चुका है, एंड द डिजिटल एक्सपोजर बढ़ चुका है, तो आई स्ट्रेस इंक्रीज हो गया है। तो प्लीज मैम, कुड यू डेमोन्स्ट्रेट सर्टेन आंसर्स जहाँ पे आप बैक पेन, नेक पेन और आई स्ट्रेस को कैसे कम कर सके? कुड यू शो अस? यस, तो इनडाइजेशन की समस्या जो है वो अभी बहुत ज्यादा कम एज से हमें देखने मिलती है, क्योंकि हमारे जो ईटिंग हैबिट्स है वो चेंज हो चुके हैं। हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड ऑनलाइन मंगाए, जोमेटो से मंगा लेते हैं, चलिए आज टाइम नहीं मिला स्विगी से मंगा लिया। तो ये जो है हम हेल्थ के प्रति अनकॉन्शियस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा काम की वजह से, या कोई हमारे कुछ हम किसी चीज में बिजी है, तो अभी ऑप्शंस बहुत ज्यादा होने के कारण हम अनहेल्थी फूड को इनटेक करना ज्यादा शुरू कर दिया है। तो उसको अगर आपको कम करना है तो आप बहुत ही इफेक्टिव ऐसा आसन है सर्वांग आसन। आपने सभी ने शीर्षासन सुना रहेगा, हेड जमीन पर रखते पूरे पैरों को आपको ऊपर उठाना है। पर देखने में वो इजी लगता है, पर करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन उसका ही सेम वेरिएशन है सर्वांग आसन, जिसमें आपको पूरे हेड के ऊपर आपके पूरे शरीर को बैलेंस नहीं करना है, लेकिन जो आपको शीर्षासन के बेनिफिट मिलते हैं वही सेम बेनिफिट आपको सर्वांग आसन के भी मिलते हैं। तो सर्वांग आसन आपकी आईसाइट को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी आंखों की जो है मसल्स को अच्छा ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है, तो आई पेन के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव आसन है। और ओवरऑल आपके पूरे शरीर के लिए इस आसन से आपको मदद मिलती है, क्योंकि इस आसन में अभी आप देखेंगे तो जो है ब्लड फ्लो रिवर्स होता है, पैरों से लेके हमारा पूरा शरीर जो रिवर्स पोजीशन में होने के कारण ब्लड फ्लो रिवर्स होता है, हार्ट की तरफ अनप्यूरिफाइड ब्लड आता है, और प्यूरिफाइड ब्लड जो है आपके पूरे शरीर में भेजने में इस आसन से मदद मिलती है। तो इस आसन को आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस आसन को करने के लिए पहले आपको आपकी पीठ के बल लेट जाना है, बैक के बल सो जाना है। इस आसन का अभ्यास करते आपको आपकी गर्दन के ऊपर खास तौर पर ध्यान देना है। आपकी गर्दन सीधी रहेगी, नजर छत की ओर, दोनों हाथ आपकी कमर के पास रहेंगे। इस आसन का अभ्यास करते हुए आपको पहले धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। अभी धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपके दोनों पैर पीछे की ओर जाएंगे, और धीरे धीरे सांस लेते हुए फिर से एक बार आपके दोनों पैरों को आपको सीधा रखना है, एल्बो ज्यादा से ज्यादा शरीर के पास रहेंगे। इस आसन का अभ्यास करते हुए आपको चिन लॉक पोजीशन होती है, यानी जालंधर बंधक बांधा जाता है, जिसकी वजह से थायराइड को कम करने में इस आसन से आपको मदद मिलेगी। इनडाइजेशन को रोकने में इस आसन से आपको मदद मिलेगी। इस आसन का अभ्यास करते हुए बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अभी इस आसन को छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले आपको दोनों पैरों को सिर की ओर लेके आना है, धीरे धीरे आपको आपके हिप्स को जमीन पे रखना है, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपके दोनों
पैर फिर से एक बार मैट के ऊपर आ जाएंगे, जमीन के ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और इस आसन का अभ्यास करते हुए, जैसे मैंने कहा, ब्लड फ्लो रिवर्स होता है, तो आपके पूरे ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में इस आसन से मदद मिलेगी। और अभी अगर आपको, जैसे कि हम देखते हैं, पूरा अभी ये जो कोरोना के सिचुएशन में बहुत ज्यादा वर्क फ्रॉम होम और मोबाइल के सामने बैठते हुए या कंप्यूटर के सामने बहुत लंबे घंटों तक बैठते हुए आपके लोअर बैक में, आपके शोल्डर मसल्स में और पूरे बैक मसल्स में बहुत ज्यादा पेनिंग होता है, क्योंकि ऑफिस का जो है अटायर अलग रहता है। वहां पे जो है आपके चेयर की जो और टेबल की जो पोजीशन होती है वो आपको कंफर्टेबल रखने के लिए होती है, पर घर पे हमारे वो जो है अटायर उस तरह से नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा लोअर बैक की और बैक मसल्स में पेनिंग होना शुरू होता है। तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव ऐसा आसन है धनुरासन, जिसमें आपको पहले आपके पेट के बल लेटना है, चिन जमीन पे रहेगी, दोनों हाथ पहले आपके कमर के पास, पैरों के नाखून जमीन पे रहेंगे। इस आसन का अभ्यास करते हुए पहले आपको आपके दोनों पैरों को फोल्ड करना है, घुटनों में दोनों पैरों को घुटनों में से अलग करना है 1 फीट के डिस्टेंस पे। अभी इनमें से दोनों हाथों से अपने पैरों के एंकल जॉइंट्स पकड़ लेने हैं। धीरे से अपना फोrehead, माथा जमीन पर रखना है। अभी धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे आगे से चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे पैर को ऊपर की ओर खींचेंगे और अपना पूरा शरीर अपने पेट के ऊपर आपको बैलेंस करना है। इस आसन का अभ्यास करने से आपके लोअर बैक की तकलीफ को छुटकारा पाने में मदद मिलती है। बैक मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, अपने चेस्ट मसल्स को ओपन अप करने में मदद करता है, इंडाइजेशन को भी सुधारने में, डाइजेस्टिव सिस्टम की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। इस आसन का अभ्यास करते हुए बहुत इफेक्टिव ऐसे बेनिफिट्स आपके शरीर को मिलते हैं। इस आसन को छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले आपको अपने पूरे बॉडी को जमीन पे रखना है, माथा जमीन पे, चेस्ट जमीन पे, थाई जमीन पे, दोनों हाथ कमर के पास, चिन जमीन पे, दोनों पैरों के घुटनों को मिला लेना है, दोनों पैरों को सीधा कर लेना है और फिर से एक बार पूरे शरीर को मैट के ऊपर पेट के ऊपर रखना है। इस तरह से अगर आप इन दोनों आसनों का अभ्यास करते हैं तो आपके बैक पेन, आपके ओवरऑल हेल्थ को सुधारने में ये दोनों आसनों से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। Thank you so much, ma'am. Ma'am, actually, this is a personal question, and I think a lot of us would want to ask you. Like, for example, अब आपको देख के we all are motivated कि we would be starting our yoga from tomorrow. So, as a beginner, हमें ऐसे कौन से आसन्स है या योगा पोजिशन है जो हमें स्टार्ट करने चाहिए? Because all of a sudden, can we start everything? नहीं, जैसे कि अभी मैम ने भी पूछा कि अब ऑल ऑफ अ सडन अगर आप ये सब करने जाएंगे तो कहीं पे भी आपको खिंचा हुआ ऐसा सेंसेशन आपको आ सकता है, पेन हो सकता है। तो आप बेसिक से यानी सूर्य नमस्कार से जो आपका योगा का जर्नी शुरू कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में अगर आपके पोजीशन अच्छे आने लगे, फिर धीरे धीरे आप पहले उत्तान पादासन कर सकते हैं, यानी कि सिंपल आपको लेग रेस करना है, 90 डिग्री तक उसे लेके आना है। 90 डिग्री तक नहीं आते हैं पहले तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, 45 डिग्री तक आप उसे ला सकते हैं। उसे कैसे करना है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, बहुत ही इजी है और खास करके टीचर्स के लिए आसन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि टीचर्स का जो जॉब है कंटिन्यूसली आपको खड़े रहना है बोर्ड के सामने और स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो बहुत बार टीचर्स को वेरिगो वेन्स का प्रॉब्लम होता है पैरों में, तो उनके लिए ये आसन बहुत इफेक्टिव है। इसमें आपको क्या करना है, पहली अच्छी खासी लंबी गहरी सांस छोड़नी है, सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है, 90 डिग्री के पोजीशन में लेके आना है। अगर आपके पैर 90 डिग्री तक नहीं आते, यहाँ तक ही आ रहे लेके आइए, लेकिन ध्यान रखिए घुटनों में जो है आपके पैर इस तरह से फोल्ड नहीं रहेंगे, आपके पैरों को सीधा रखना है। यहाँ तक आ रहा है तो भी चलेगा, पैर सीधे रहेंगे। इस आसन का अभ्यास करने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की कार्य क्षमता बढ़ाने में, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। उसी के साथ साथ ही आपके पेट के ऊपर के बेली फैट को कम करने में मदद करता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव ऐसा आसन है।
उत्तान पादासन। इस आसन को छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को धीरे से नीचे लेके आइए। इस तरह से आप इस आसन का अभ्यास हर दिन कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव ऐसा आसन है और धीरे धीरे इस आसन में आपको अच्छी स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई, फिर धीरे धीरे आप आगे जाके सर्वांग आसन की तरफ या आगे के थोड़े एडवांस आसनों की तरफ बढ़ सकते हैं। Okay. Hello, I'm audible. Yes, yes. Thank you Yes, so much, ma'am. Even I have a question, but my question is specially related to females. Like, it is related to hormonal imbalance. Like we all know that hormonal imbalance itself brings a lot of health issues. So, can you suggest some of the asanas that would help us to control hormonal imbalance? Yes, yes. तो योगा में देखा गया है कि स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। तो अगर आप इन सारे आसनों का अभ्यास करते हैं, और एक फेमस आसन है योगा का, सभी को पता है, शवासन, सबका पसंदीदा भी है क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। तो वो जो है आसन, इससे भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। इजी आसन है, दोनों पैरों को अलग करना है, हाथों को अलग करना है, गर्दन सीधा रखिए या किसी भी एक साइड टर्न कर लेना है और आंखें बंद करनी है। तो इस आसन का अभ्यास करेंगे आप हर दिन, तो इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस कम करने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन उसी तरह से और एक आसन है जिसे कहा जाता है पश्चिमोत्तानासन, जिसमें आपके पेट के ऊपर यानी हमारे जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एक्सक्रिएटिव ऑर्गन्स के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से आपके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए, पीसीओडी, पीसीओएस के लिए बहुत ही इफेक्टिव ऐसा आसन है। पेट के ऊपर प्रेशर आने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हर दिन मतलब हर मंथली आपको अच्छे से आने में इस आसन से आपको मदद मिलेगी। तो इसे किस तरह से करना है, तो पहले आपको आपके दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा कर लेना है। दोनों हाथ आपके जो है कमर के पास रहेंगे। अभी इस आसन को करते हुए आपको पहले दोनों हाथों को सांस लेते हुए सिर के ऊपर स्ट्रेच करना है, अच्छे से एक एल शेप आपको फॉर्म करना है। अभी यही सही सांस लेनी है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आपको झुकना है नीचे। बहुत बार हम झुकते हैं, इस तरह से झुकते हैं, शोल्डर्स पहले ड्रॉप हो जाते हैं, तो आपको आपकी लोअर बैक से धीरे धीरे नीचे झुकना है। पैर के अंगूठे तक हाथ जाए तो अंगूठे पकड़ लीजिए, अदरवाइज एंकल जॉइंट भी आप पकड़ सकते हैं। और फिर और एक बार सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने फोरहेड को अपने घुटनों के ज्यादा से ज्यादा करीब लेके जाने की कोशिश करनी है, या घुटनों के ऊपर अपने फोरहेड को रेस्ट करवाना। इस तरह से अगर आप इस आसन का हर दिन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको महसूस होगा आपकी जो है टमी के ऊपर यानी आपके पेट के ऊपर उसका बहुत अच्छा ऐसा प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर खास तौर पर प्रेशर आने के कारण मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को सुधारने में इस आसन से आपको जरूर मदद मिलेगी। इसी के साथ हार्मोनल इम्बैलेंस को भी कंट्रोल करने में इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। Yeah. Hello, am I audible? yes, you are Yes. audible, ma'am. Thank you, madam. I would like to ask one question. लॉकडाउन की वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टेइंग एट देयर होम, बहुत सारे लोग घर पे ही बैठे हैं, तो बाहर आना जाना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी सब स्टॉप हुआ है। तो कुछ आप ऐसे आसन बता सकते हैं क्या जिसके थ्रू एक्सरसाइज कुछ आप ऐसे बता सकते हैं कि जैसे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, और मे बी सम पीपल फील्स फिजिकल एंड मेंटल टायर्डनेस, तो उससे वो रिड्यूस होगा। यस। तो योगा का जो है प्रैक्टिस आपको कहीं पे आउटडोर जाके करने की जरूरत नहीं है। आप घर पे किसी भी एक रूम में जहाँ पे एक अच्छा लाइट आता है, वेंटिलेशन अच्छा है, ऐसी आप जगह पे जाके योगा का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे जो भी अभी हमने आसन देखे हैं, सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं,
कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो पद्मासन है, वो आप कर सकते हैं। स्ट्रेस को कम करना है, उत्तान ताड़ासन है। धीरे धीरे आपका जिस तरह से प्रैक्टिस इंप्रूव होगा, आप आगे जाके कर सकते हैं आसन, सर्वांगासन, धनुरासन, इस तरह से आप आसनों को आगे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे आसन है, जैसे कि मैंने कहा बहुत ज्यादा आसन है अगर देखा जाए तो, पर उसमें से है आप थोड़े सा आसन का जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि और एक अच्छा आसन है आपके बैक जो है बैक पेन में, उसको आपको कम करने में मदद करता है, जिसे कहा जाता है शलभासन, जिसको आपको करने के लिए फिर से एक बार पेट के बल लेट जाना है, चेयर को जमीन पे रखना है, आपके दोनों हाथ आपके कमर के पास रहेंगे, साइड में रहेंगे, पैरों के नाखून जमीन पे रहेंगे। अभी पहले स्टार्टिंग के दिन में आप इस आसन का अभ्यास एक एक चरण के साथ कर सकते हैं। पहले सांस छोड़ेंगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने एक पैर को ऊपर उठाना है, अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, कुछ 10 काउंट्स तक होल्ड करेंगे, सेल्फ काउंटिंग भी आप कर सकते हैं, ध्यान रखिए स्पीड के साथ नहीं करना है, धीरे धीरे नॉर्मल पेस के साथ करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे, फिर से एक बार सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने राइट पैर को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे हवा में, जहां तक भी आपका पैर आ रहा है या यहाँ तक ही आ रहा है यहाँ तक लेके आइए। धीरे धीरे आसन का प्रैक्टिस करते हुए आपका भी पैर और ऊपर उठने लगेगा। फिर इस आसन के प्रेशर में होल्ड करेंगे, 10 काउंट्स करना है, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से पैर को नीचे लेके आना है। इस तरह से आप इन आसनों का प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको इस आसनों का जो प्रैक्टिस है पहले किसी अंडर योगा टीचर के अंदर आपको इसे परफॉर्म करना है, ताकि वो जो है आपके पोजीशन को करेक्ट करने में आपको मदद करेंगे। अभी फिलहाल के सिचुएशन में फेस टू फेस यानी ऑफलाइन कहा जाता है, योगा के बैचेस बहुत बार नहीं लेके जाते, तो आप ऑनलाइन भी कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी जो है टीचर्स आपको आपके पोस्चर करेक्शन में आपकी मदद कर सकते हैं, ताकि आप जो भी आसन करें उससे आपको कोई भी क्या बोलते हैं हम इंजुरी ना हो, उसको उस आसन के आपको ज्यादा से ज्यादा फायदे मिले। तो ध्यान रखिए कि आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो पहले किसी से तो कंसर्न कर लीजिए और उसके बाद ही उसे करना शुरू कीजिए। So thank you, ma'am. I would like to ask one more question. What is the ideal time for doing the yoga? And second one is, are there any side effects of yoga on our body? तो योगा का जो आइडियल टाइम है वो अगर आप देखेंगे तो सुबह का जो टाइम रहता है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है योगा करने के लिए। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में कहा जाता है कि ऑक्सीजन जो लेवल है वो ओवरऑल आपके सराउंडिंग में बहुत ज्यादा रहता है, हवा में ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होने के कारण आपको एक फ्रेश एयर भी आपके बॉडी में जाता है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सुबह के वक्त में हमारे आजू बाजू में ज्यादा शोर शराबा नहीं रहता है, बहुत ज्यादा किसी चीजों के आवाज नहीं रहते, शांत रहता है। तो अगर आप देखेंगे तो सुबह कहा जाता है 4 बजे करना चाहिए योगा, पर हमारी रात ही बहुत बार 12 बजे हो जाती है, तो 4 बजे उठना तो पॉसिबल नहीं है। तो आप एक 5-6 बजे या 7-8 बजे तक आप योगा का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्यादा भी लेट मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद भी जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं 1 घंटा आपने प्रैक्टिस किया, आधा घंटा प्रैक्टिस किया, उसको भी आपको पूरे 23 आगे के आपके जो अभी आप 1 घंटा प्रैक्टिस करें तो आगे के भी आपके जो 23 आवर्स यानी आपका जो पूरा दिन है आपको उसमें भी आपको उस जो है प्रैक्टिस का हेल्प होता है। क्योंकि अगर आप लेट उठेंगे तो आप लेट प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, लेट प्रैक्टिस होगी तो आपके आगे जो है प्रोग्राम है, जैसे कि आपको ब्रेकफास्ट करना है, आपके मीटिंग से काम है, तो उसका भी शेड्यूल चेंज हो जाएगा। तो प्रेफरेबल है कि आप जल्दी उठ के 6-7 बजे तक आपके प्रैक्टिसेस कर लीजिए, या अदरवाइज आपको सुबह टाइम नहीं आ रहा है, आपके कुछ जो है प्रोग्राम से, आपकी मीटिंग से, या आप किसी भी शेड्यूल में बिजी है, तो आप इवनिंग का तो एटलीस्ट समय निकाल लीजिए जिसमें आप योगा पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवनिंग में आप 4 से लेके 7 बजे तक अच्छे से योगा पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत मतलब पुराने समय में इस तरह से कहा जाता है कि सूर्योदय यानी जब भी सनराइज होता है और सनसेट होता है वो जो है आइडियल टाइम होते हैं योगा पे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप ये 2 टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और उसी के साथ साथ योगा के ऐसे साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, और बहुत सारे मिथ्स है कि योगा करने से क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको आसन दिखा है, अभी ये सभी आसन आपने जो देखे हैं वो हर एक आसन सभी के लिए होगा ही नहीं, होगा ऐसी बात नहीं है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो वो कुछ जैसे कि उत्तान ताड़ासन है, वो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम पैर ऊपर उठाते हैं हाथ की तरफ थोड़ा ज्यादा ये होता है, प्रेशर आता है, तो हार्ट प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ साथ हाई बीपी की तकलीफ वालों को वो नहीं करना है। तो इसी तरह से योगा की कुछ प्रैक्टिसेस है जो आपको पहले समझ लेनी है कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, उसके बाद ही आपको उसे अडेप्ट करना है। तो योगा के साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, इफेक्ट्स ही अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, पर अगर आप उसे सही तरीके से करते हैं, सही वे से करते हैं, किसी के अंदर पहले सीखते हैं उसके बाद उसे परफॉर्म करते हैं, तो आपको उसके इफेक्ट्स मिलेंगे, साइड इफेक्ट्स कम ही मिलेंगे। तो आपको पहले किसी के अंदर, योगा टीचर के अंदर, योगा थेरेपिस्ट के अंदर या योगा इंस्ट्रक्टर के अंदर पहले आपको थोड़ा सीख लेना है किस तरह से किया जाता है, उसके बाद आप धीरे धीरे जो है घर पे भी प्रैक्टिस उनका कर सकते हैं। Okay. Thank you so much, ma'am. I have one more question. Like, this is, I would consider one of the most important question. It is about, like, if you can tell us about some of the don'ts of yoga. Like, generally हम योगा करते हैं, but कुछ एक ideal way होता है करने का, कुछ चीजें हैं जो हमें ignore करनी चाहिए. So आप कुछ हमें ऐसे बताएंगे जो practices हमें adopt नहीं करनी चाहिए while doing yoga? Yes. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले तो आपको बात ध्यान रखनी है योगा करते वक्त, क्या होता है हम बहुत बार जाते हैं क्लास में और वहां पे आपको बहुत बार फॉर्म फिलअप करने बोलते हैं, जिसमें आपको कहा जाता है कि आपके हेल्थ के बारे में आपको लिखना है, आपको हाई बीपी है क्या, या आपको कोई हार्ट की तकलीफ है क्या। तो हम क्या करते हैं, हाँ हमें तो कुछ नहीं है पर हमें करना है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, मेंशन ही नहीं करते हैं कि हमें ऐसे ऐसी तकलीफ है। अगर किसी को हर्निया है तो उन्होंने भी पेट के ब्लड प्रेशर आते हुए आसनों को परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि वहां पे अगर आपके प्रेशर आएगा तो उसका जो है आपको सीवियर तकलीफ और होना शुरू होगा। तो आपको पहले वो बातें समझ लेनी है। जब भी आप योगा के किसी भी क्लास में जाएंगे तभी आपको पहले आपको खुद का हेल्थ अपडेट आपके इंस्ट्रक्टर को बताना है, टीचर्स को बताना है, ताकि वो उस तरह से आपको आगे की आपके योगा के जर्नी में गाइड कर सके। उसी के साथ बहुत बार हम क्या कर देते हैं, जैसे हम जिम में जाते हैं वहां पे फ्लोरिंग रहता है, वहां पे मैट्स बहुत कम यूज करते हैं। जिम में आप जाते हैं शूज पहन के जाते हैं तो आप डायरेक्ट फ्लोर पे प्रैक्टिस करते हैं, पर योगा में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है जमीन का टेम्परेचर यानी आपके फ्लोरिंग का टेम्परेचर हमारे जो है बॉडी का टेम्परेचर अलग रहता है। तो उन दोनों के बीच में आपको आपके मैट को रखना है। अगर आपके पास मैट नहीं है तो आपको परचेज, घर में जाते हैं योगा जाना है तो आपको परचेज करने की भी जरूरत नहीं है, आपके घर पे रहती है, शतरंजी रहती है सभी के घर पे, या गरी रहते हैं, या मराठी में जिसे कहा जाता है घुंगरू रहता है, सबके घर में एक ना तो एक या दो होती है, तब उसे लेके जाइए, उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। पर ध्यान रखिए कि कभी भी आपको डायरेक्टली फ्लोर के ऊपर प्रैक्टिस योगा के करने नहीं है। उसी के साथ साथ योगा क्लास में जाते हुए हम बहुत बार देखते हैं कि हमारे बहुत ज्यादा कपड़े टाइट रहते हैं, एकदम बॉडी हगिंग रहते हैं। टाइट होने की अगर आप हाथ इस तरह से भी नहीं उठा पाएंगे तो आप वृक्षासन कैसे करेंगे आपको, क्योंकि उसमें हाथ खींचने हैं ऊपर। अगर मेरा टी शर्ट बहुत ज्यादा टाइट है, मेरा हाथ यहाँ तक ही जाए तो मैं क्या करूंगी, यहाँ तक ही लेके जाऊं, तो वो प्रेशर जहां आना चाहिए वहां नहीं आएगा और दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर आपको तकलीफ होगी। तो ध्यान रखिए जब भी योगा क्लास जाएंगे लूज और कंफर्टेबल, जिसमें आप आसानी से हाथों की और पैरों की मूवमेंट कर सके, इस तरह से आपको आपका क्लोथिंग रखना है। उसी के साथ साथ आप सभी को पता होगा कि जिम में जब भी हम जाते हैं तभी हम प्री वर्कआउट शेक लेते हैं और पोस्ट वर्कआउट शेक लेते हैं। सभी जिम जो जाते हैं उनके पास एक बॉटल रहता है, जिम करने से पहले उसे पीना है, शेक पीना है, जिम करने के बाद उसे पीना। तो योगा जब भी आप योगा को परफॉर्म करेंगे तो खास तौर पे इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो पेट है यानी आपने जो खाना खाया है
वो 3 से 4 घंटे पहले आपको खाना है। अगर आपको दोपहर के प्रैक्टिस करनी है यानी आपको 4-5 बजे प्रैक्टिस करनी है तो आपका लंच जो है वो 11 से 1 के बीच में होना चाहिए, ताकि आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कंप्लीट हो चुका होगा। और उसी के साथ साथ जब भी आप वाटर इनटेक करेंगे तो वो भी आपको योगा करने के आधा से 1 घंटा पहले ही करना है, क्योंकि हम जो आसन परफॉर्म करते हैं उसमें खास तौर पे हमारे पेट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है योगा के समय। तो अगर आपका खाना और पानी जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा तो आपको बाद में जो है वोमिटिंग जैसे सेंसेशन आते हैं अंदर से, और हमें लगता है कि हमने अभी ये जो आसन किया उसकी वजह से हमें जो है उल्टी जैसे फील हो रहा है या हमें वॉमिटिंग जैसा महसूस हो रहा है। तो उसका कारण ये है कि हमारा जो है डाइजेशन ठीक से हुआ नहीं है और उसकी वजह से वो जो है सेंसेशन हम फील करते हैं। तो ध्यान रखिए योगा प्रैक्टिसेस के 3-4 घंटे पहले आप कोई भी सॉलिड फूड लेना है। 1 से आधा से 1 घंटा पहले आपको कोई भी लिक्विड जो है कंज्यूम करना है। और योगा प्रैक्टिसेस के बाद भी आपको 1 घंटे तक कुछ खाना या पीना नहीं है। 1 घंटे के बाद आपका जो रूटीन है जिसमें आप चाय ले सकते हैं, आपको पानी पीना है तो वो पानी पी सकते हैं, या अगर आपको कुछ खाना है तो वो जो है आप इस तरह से आप गैप अगर मेंटेन करेंगे तो आपके प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी और आपको योगा के कोई साइड इफेक्ट्स भी वहां पे देखने नहीं मिलेंगे। उसी के साथ साथ ही आपको खास ये बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी प्रैक्टिसेस को करते समय पहले वो प्रैक्टिस को समझ लीजिए, कहीं पे भी ओवर स्ट्रेन नहीं करना है। अगर आपके हाथों के साथ अगर आपके पैर नहीं पकड़े जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जहाँ नहीं है तो खींचेंगे पैर को, हाथ को और ज्यादा पीछे की ओर लेके जाएंगे ताकि एटलीस्ट हम ग्रैब तो कर सके। तो आपको वैसे नहीं करना है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके ओवर स्ट्रेस में अगर आप कोई भी योगासन परफॉर्म करते हैं तो उसके आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, उल्टा आपको कहीं पे भी तो आपको उसकी वजह से खिंचाव होगा बाद में योगा प्रैक्टिसेस के बाद वहां पे, अरे नहीं मुझे योगा करने के बाद वहां पे ना पेन शुरू हो गया, मैं तो योगा नहीं करने वाला, ऐसे हो जाता है। तो वहां पे हम ये बात भूल जाते हैं कि कहीं तो हमने ही ओवर स्ट्रेन किया है, हमने कहीं तो ज्यादा पुल किया है हमारे बॉडी को। तो उस तरह से करना नहीं है, क्योंकि सबकी बॉडी जो है अंदर से सेम है, हमारी बॉडी बाहर से अलग अलग है। सभी के काम करने का और लाइफ स्टाइल का तरीका अलग रहता है। तो किसी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, कई बहुत ज्यादा लोग कमर से आगे झुक पाते हैं लेकिन उन्हें बैकवर्ड बेंड करना डिफिकल्ट लगता है। तो आप पहले अपने खुद के बॉडी को समझ लीजिए कि आप क्या इजीली कर सकते हैं और क्या करना आपके लिए डिफिकल्ट है। धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिसेस करेंगे आपके बॉडी में एक अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगी और धीरे धीरे जो आसन आपको पहले नहीं हो पा रहे थे वो आप धीरे धीरे अडेप्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि कहीं पे भी आपको ओवर स्ट्रेन नहीं करना है। किसी भी योगा पोस्चर में आप जितना कंफर्टेबली कर सके, जो हमने अभी पहले ही ये सेशन के समय व्याख्या जो समझी है स्थिर सुखम आसन, जो मैंने कहा कि आपको वो योगा पोज में स्टेबल रह सके और उसमें भी आपको एक हैप्पीनेस जैसे फीलिंग आए, उसी तरह से आपको उसे परफॉर्म करना है, ओवर स्ट्रेन नहीं करना है। तो ये कुछ डोंट्स ऑफ योगा है जिसको अगर आप समझ लेते हैं और अपने प्रैक्टिसेस को शुरू करते हैं तो आपके प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे। आपको बहुत इफेक्टिव ऐसे बेनिफिट्स आपके पूरे बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन कुछ छोटी मोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्रैक्टिसेस को आपको करने में आसानी भी होगी और इम्प्रूवमेंट का भी बहुत ज्यादा आपको ऑप्शन वहां पे देखा जाएगा। Thank you so much, ma'am. Participants, feedback link have been already sent in your chat box. Make sure that everyone have filled it. If not, fill it right now. Okay. So with this, we brings us to the end of this engrossive and informative workshop. I would like to take this opportunity to thank everyone. First of all, I would like to thank Dr. Sunil Karve for coming up with such an amazing idea and helping us to arrange workshop on yoga, which is vital need in today's days, especially if we talk about COVID, this pandemic period. Okay.
Along with that, I would also like to thank our yoga trainer, Miss Bhairavi, to coming up with such an enlightening and what you call is that is sharing her knowledge with us about yoga. Along with that, I sincerely thanks our cultural department and IQAC for arranging such an amazing workshop, and also our fellow colleagues for joining us. We are also thankful for an overwhelming response and active participation from our participants. We certainly hope that this session has been productive for all of you, and wish that the knowledge shared with you will be helpful for you all to carry healthy life. And students, stay tuned, participants and students, everyone. Such more sessions will be organized in coming days as well. Thank you so much, everyone. थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरा ऐसा है कि योगा का जो नॉलेज है वो आप सभी तक अच्छे से पहुंचा मैं पाई हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है। तो आप भी जल्दी से योगा करना शुरू कीजिए, बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही सिंपल है। आप सिंपल से लेके धीरे धीरे, कहा जाता है योगा में कि नोन से लेके अननोन तक का जर्नी है। बहुत बार हम करते हैं कि नोन, हमें अननोन है कुछ बातें तो हम नोन की तरफ जा रहे हैं। तो योगा का सभी को पता है कि उसके फायदे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो उसे अडैप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। पर अगर आप एक बार शुरू कर देते हैं वो जर्नी तो बहुत ज्यादा इजी है, धीरे धीरे आगे जाके आप एडवांस लेवल तक भी इसे लेके जा सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच गोलावाला कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स कि मुझे यहाँ पे आपने बुलाया और स्टूडेंट्स के लिए मैं एक अच्छा सेशन यहाँ पे कर पाई, उनको थोड़ा इंफॉर्मेशन योगा का जो है शेयर कर पाई। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. I would request Maida sir to end the meeting.